वेलकम टू डीसी मोटर्स वीडियो पार्ट 13। इस वीडियो में हम देखेंगे डीसी सीरीज मोटर में इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कैसे करता है। तो देखेंगे हम। तो मैकेनिकल ब्रेकिंग ये वीडियो पहले वीडियो में बताया है, शंट मोटर्स का रिपीट करता है अभी एक कुछ देर। मैकेनिकल ब्रेकिंग कैसा होता है। मैकेनिकल ब्रेकिंग आप ब्रेक दबाए तो ये ड्रम ब्रेक है तो ड्रम मूव करता है और फ्रिक्शन से उसमें ब्रेकिंग होता है। सो दिस इज द वे braking is happening in drum braking, and the drum it is moving inside, you can see, and it is creating friction will be there on the surface, and because of the surface friction it is getting braking. So this is the mechanical braking or friction braking, but we are telling about electric braking. So we are going to see two types of braking, friction braking, that is known as mechanical braking, and electric braking to be done by us. Let us say what are the mechanical brake का disadvantage। वो स्मूथ स्टॉप नहीं कर सकता है और ब्रेकिंग का सरफेस का कंडीशन भी उसमें इम्पोर्टेंट होगा। बज़ाल हो गया तो उसका सरफेस ख़राब हो सकता है उसके बाद, और भी स्मूथ स्टॉपिंग नहीं मिलता है, एंड इट इज़ रिक्वायरिंग द स्किल ऑफ द ऑपरेटर। For the mechanical part, the person who is applying brake, he should be having skill, then it will be a smooth brake, otherwise it will be creating a problem. Now when coming to electric braking, there is no mechanical arrangements, so no braking lining and levers and no mechanical gadgets are there, hence there is no tear and wear losses. So the life is very high and it is having highly efficient and smooth operation. You can see the electrically braked items will be smoothly stopped, very smoothly stopped. It will be in metro line, railways or other suburban lines, the train it is very smoothly stopped, and after that it will be smoothly started, like that it is moving. Even the person sitting inside will not having any disturbance. And the additional requirement is, even if you are having electric brake, to keep the item on final stop position. If the machine is stopped and reached a zero position, then it has to be having a mechanical brake to keeping in standstill. And we will be seeing the electric braking terms. First is rheostatic or dynamic braking, and the second is plugging or reverse current braking, and third is regenerative braking. As if we already seen shunt machine, in DC shunt motor also we have seen the same thing. So you have to remember these names: rheostatic or dynamic, plugging or reverse current, and regenerative braking. How it is working in DC motors, that will be seen. Now we are telling about DC series motor, rheostatic or dynamic braking. So this is the original motor diagram. The voltage is there and a series field and a armature, and both are connected in series, and you can see the direction of current and the back EMF direction. So this is the original DC motor connection diagram. ये तो series motor का connection diagram है, voltage देता है, positive negative है, और सीरीज फील्ड भी है, आर्मेचर भी है, उसका करंट का पोजीशन आप देख सकता है, और बैक EMF का पोजीशन भी। अब देखेंगे ये रियोस्टैटिक ब्रेकिंग करने के समय क्या करता है। ये रियोस्टैटिक करने के समय डीसी सीरीज मोटर पूरा रिमूव करता है सप्लाई से पूरा निकाल करता है, तो सप्लाई वोल्टेज अभी कुछ नहीं रहेगा। और क्या करता है, एक रेजिस्टेंस डालता है और फील्ड भी रहेगा, फील्ड का कनेक्शन का कुछ चेंज रहेगा, अब बता देंगे। तो पहला थिंग ये है, रियोस्टैटिक और डायनामिक ब्रेकिंग इन डीसी सीरीज मोटर ये पूरा काट करता है, सप्लाई से पूरा काट करता है। अभी लेटेस्ट क्या क्या होता है, ये तो हमारा कनेक्शन है पूरा काट दिया है, और मोटर इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द सप्लाई, and the field connections are to be reversed. That is important. The field connections now it is getting reversed. जो पहले था कनेक्शन वो अभी चेंज किया है, उसका कनेक्शंस चेंज किया है, रिवर्स किया है, इंटरचेंज किया है। And we connect a high resistance in series or a resistance in series, a variable resistance in series to the combination of armature and series field. Now there is no supply voltage, and still it will be under rotation with respect to inertia. So what happens, अभी ये तो एक जनरेटर बन गया है। नाउ द डीसी मोटर था वो सप्लाई से निकाल दिया, अभी भी वो चल रहा है, उसके वजह से वो एक जनरेटर जैसा चालू हो गया है। सो नाउ इट इज़ अ जनरेटर, and because of the generator it has to be
load the resistance of R. So some current will be there, and that will be opposed by the resistance R, and effectively this generator will have a load of R, and it will be trying to stop the generator because of the load resistance. And why we are interchanging the field connections are so that we know in a series generator the residual magnetism should be applied in a such a way that it is adding the voltage. So in the original condition, if you are just disconnecting the supply, then the residual magnetism will not aid. So to keep the residual magnetism aiding the armature, तो देखिए ये वोल्टेज निकाल दिया, ये पूरा एक सर्क्यूट बन गया है. सो इसमें कुछ रेसिजुअल मैग्नेटिज्म है और इसमें वोल्टेज आता है. इसका वोल्टेज फिर भी इसका वो फ्लक्स को इंक्रीज करना है, तो रेसिजुअल मैग्नेटिज्म इंक्रीज करना है. ऐसा करना है तो क्या करना है, इसका पोलैरिटी चेंज करना है. उसके लिए पोलैरिटी चेंज किया है. सो ये जानता है रियोस्टैटिक और डायनामिक ब्रेकिंग इन डीसी सीरीज मोटर. डीसी शन मोटर से क्या डिफरेंस है इसमें? डीसी शन मोटर में ये शन फील्ड पूरा समय कनेक्ट किया था, आपको जानकारी याद होगा. तो इसमें डीसी सीरीज मोटर में रियोस्टैटिक ब्रेकिंग करने के समय ये पूरा वोल्टेज से सप्लाई से निकाल दिया है. शन मोटर में ऐसा नहीं था, वो फील्ड अभी भी सप्लाई दिया था, सिर्फ आर्मेचर निकाल दिया था. अभी दूसरा है प्लगिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग. ये है ओरिजिनल. we will be telling how it is connecting. The supply voltage is still available. एक डीसी मोटर में सप्लाई वोल्टेज फिर भी अवेलेबल है, लेकिन ये आर्मेचर का कनेक्शन हम चेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे. तो एक मोटर में इधर फील्ड और आर्मेचर चेंज किया तो क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करता है. तो वही हमारा ब्रेकिंग. सो एक तरफ रोटेट करने वाला मशीन दूसरा तरह रोटेट करना है तो कुछ ब्रेकिंग आना है ना. सो दिस इज नोन एज प्लगिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग डीसी सीरीज मोटर. उसका कॉन्सेप्ट ये है DOR चेंज करना. उसके लिए क्या करना है, आपको आर्मेचर का कनेक्शंस रिवर्स करना है, यानी इंटरचेंज करना है, एंड सप्लाई फिर भी अवेलेबल होगा. वही डिफरेंस. ये रियोस्टैटिक ब्रेक में पूरा काट दिया था, लेकिन प्लगिंग में आपका सप्लाई अभी भी उसमें ही होगा. और वेरिएबल रेजिस्टेंस इज देयर, एंड दिस इज टू कंट्रोल द ब्रेकिंग कंडीशन. सोचो ये चेंज कर दिया, सडन स्टॉप नहीं होना, सडन ब्रेकिंग नहीं होना है, उसके लिए करंट कंट्रोल करना है. इनिशियली कम करंट और मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद रेजिस्टेंस कम करके जाएंगे तो इफेक्टिवली स्मूथ ब्रेकिंग होगा. सो दैट इज अबाउट प्लगिंग और रिवर्स करंट ब्रेकिंग इन DC series motor. And the regenerative braking is used in DC shunt motor because it is used for overhauling characteristics. आप देख सकता है पहले वीडियो DC shunt में कैसे DC regenerative आता है. ऑटोमेटिकली इट इज़ गिविंग यू रीजनरेटिव ब्रेकिंग. लेकिन ये DC सीरीज मोटर डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. DC सीरीज मोटर का कंडीशन कैसा है, ये आर्मेचर और सीरीज फील्ड सभी समय सीरीज पे है, दोनों का करंट एक ही है. सो एक ही साथ करंट भी आर्मेचर फील्ड करंट भी आर्मेचर करंट भी चेंज करता है, तो उसमें कोई डायरेक्शन ऑफ चेंज का कंडीशन नहीं आता है और उसमें कोई ब्रेकिंग का इफेक्ट डायरेक्टली नहीं है. उसके लिए मतलब ये है कोई मॉडिफिकेशन नहीं है तो DC सीरीज जनरेटर में रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं होगा. मॉडिफिकेशन करना है तो कर सकता है, उसके बाद हमें मिलेगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग, लेकिन वो उतना ज़्यादा नहीं यूज़ करता है. तो ये रिवर्स करना है, ये रिवर्स करना है तो हमारे लिए ब्रेकिंग मिलेगा. सो फिर भी यूज़ करता है कुछ ट्रैक्शन मोटर में स्पेशल अरेंजमेंट के साथ साथ. सो रिजनरेटिव जनरेट ब्रेकिंग जनरली DC मोटर यूज़ नहीं करता है, कर सकता है मॉडिफिकेशन के द्वारा है तो DC ट्रैक्शन मोटर में यूज़ करता है वो. सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्रेकिंग इन द DC सीरीज motor. It is dynamic or resistance rheostatic braking and plugging, and third thing is regenerative braking. The types we are able to explain it now. Thank you.